In this video, I will be discussing uh, only two problems of straight lines, and both of them are matrix match type problems. So I'm just I took only two problems for the discussion. I think it will take not more than 30 minutes, and both problems are good. So first problem is a square having sides parallel to the coordinate axis, and it is inscribed in the region where x and y are greater than 0 and y is less than or equal to minus x cube plus 3x. If the area of the square is written in this form, then solve these problems. That means we need to find a and b. So first we need to calculate the area of the square. Okay, so first we draw the graph of this function, like this is y is equal to y is equal to 3x minus x cube. Okay, it means we can take x common and 3 minus x square, and there are x, root 3 minus x, and root 3 plus x. Okay, if we draw this figure, okay, and it is something like this is, you can draw like this point is 0 and this is minus root 3 here is root 3. Okay, root 3 minus x, root 3 plus x, and coefficient of x is negative, minus plus minus, so this graph would be like this. Negative side like this. Okay, so this is the graph. Y is equal to 3x minus x square. Okay, root 3 minus x, root 3 plus x, root 3 minus x, and root 3 plus x. Here it is x, root 3 minus x, root 3 plus x. Okay, now what is the meaning of this inequality, y less than or equal to minus x cube plus 3x? That means we need the point x and y, they lie inside this curve, y less than or equal to this. So we can put, say, if you put here, if there is a point, say, say 1 comma 0. Yes, 1 comma 0. If we take this point 1 comma 0, and if I put this point here, y is this, so 0 less than or equal to minus x cube, that means minus 1 plus 3, that means 0 less than or equal to 2, this is 2. That means the required area in which that square is lying is this area in the first quadrant in between 0 to root 3. X and y are positive, and this inequality is also holds y less than or equal to minus x cube plus 3x. We just put a known point 1 comma 0 at known side, and there is one point, say 1 comma 0, and if we put 1 comma 0 in this curve y, in this inequality y less than or equal to minus x cube plus 3x, this satisfies this inequality. That means this is the required region. This is the required region in which your square lies, right? Okay, now there should be some correction here. This square should be of maximum area. This square should be of maximum area. So if I make this square like this, this is the required square. Suppose this is the square. This is the square. Okay. Now this is the square.
and say this is x coordinate A and this is B. Here height is this point, coordinates of this point are a comma 3a minus a cube, and coordinates of this vertex are b comma 3b minus b cube. Okay, now this is the square and we need to find the area of this square. So the square lie inside the first quadrant. तो अगर आप इसे एक्स एक्सिस के ऊपर भी नहीं लेंगे तो लाइन का एरिया जीरो होता है, तो जस्ट इनसाइड हमें जो ये मैंने स्क्वायर बनाया है इसके इनसाइड जो है हमारे पास कोई भी पॉइंट एक्स वाई लाई करेगा और इस स्क्वायर का हमें एरिया चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया कि भाई हमारे पास में हम लोग लेंगे कि भाई मैक्सिमम एरिया, क्योंकि स्क्वायर तो ऐसे ही बन सकता है कि एक स्क्वायर हमने ऐसे बना दिया यहाँ पर एक्स और वाई, तो स्क्वायर हमें चाहिए स्क्वायर ऑफ, हमारे पास चाहिए कि मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर चाहिए हमारे पास में, राइट। तो हम लोगों ने ये स्क्वायर बना दिया। अब क्या करते हैं हम लोगों ने, एक तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एरिया। एरिया हो गया हमारे पास में कितना, एरिया ए से एरिया ए इज, लेंथ ऑफ साइड कितनी आ गई बी माइनस ए, और बी माइनस ए का स्क्वायर चाहिए मुझे, बी माइनस ए का स्क्वायर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बी माइनस ए स्क्वायर। नाउ इफ दिस इज square, then height, that means both of these sides are parallel to coordinate axis, these heights 3a minus 3 minus a cube, this y coordinate should be equal to 3b minus b cube, and length is equal to breadth, that is also equal to b minus a, b minus a. Okay, so if we take these two, if we take first two, if we take these two, then what, then we will get 3a, we get 3 times b minus a, 3 times b minus a is equal to b cube minus a cube, that is b minus a, b square plus ab plus a square. Okay, now we can cancel out them because a is not equal to b. We get another equation, a square plus ab plus b square is equal to 3. Suppose this is equation number 2. Okay, now we have this 3a minus b cube is equal to b minus a, and 3a minus a cube, 3a minus a cube, 3a minus a cube is equal to b minus a। भाई ये जो हाइट है हमारे पास में 3a minus a cube, इस हाइट को इसके बराबर भी होना है, इस हाइट को इसके बराबर भी होना है, ये तीनों बराबर हैं, तो एक हमारे पास आ गई 3b minus b cube is also b minus a। तो b minus a और एक तो हम ले चुके हैं, इन दोनों को पहले हमने दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को जो साइड्स हैं पैरेलल टू y एक्सिस, इनकी लेंथ को तो बराबर कर ही दिया हमने, है ना। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाता है, हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से आ जाता है 3 टाइम्स, एडिंग दीज टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारे पास आता है 3 टाइम्स a प्लस b माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b माइनस a। ये हमारे पास में, तो a प्लस बी हमने इसमें से कॉमन लिया है, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करा, a प्लस बी कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 3 माइनस a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b माइनस a। और इस इक्वेशन को भी हमने कोई नाम रख दिया, इसका भी नंबर दे दिया हमने इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 3। तो हमें लाना है b माइनस ए, b माइनस ए का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, और हमारे पास में ये सारी चीज़ें
हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली हैं। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग कि इन्हें कैलकुलेट करने के लिए, ओके, यहाँ से अगर हम चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस, हमारे पास में 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम देखें तो 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हम ए बी के टर्म्स में रख सकते हैं। ओके, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से ही अगर देखें हम, इक्वेशन नंबर 2 से एक और रिलेशन हम जनरेट कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab आएगा हमारे पास में, और हमारे पास है प्लस का ab है पहले से, तो यहाँ पर कितना कर दें, a प्लस बी का माइनस का 2ab माइनस ab कर देते हैं, माइनस ab इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ए बी को ए प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या ए प्लस बी स्क्वायर को हम ए बी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस रिलेशन से। तो ये भी हमने एक रिलेशन का नंबर इसी से दे दिया कि इसका नंबर भी हमने 4 दे दिया। ओके, नाउ ये तो थर्ड है हमारे पास में, थर्ड में अगर हमने इसे लिखा ए प्लस बी, थर्ड वाले में हमने इसे ए प्लस बी और 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 से रख दी। 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए बी, तो इसकी वैल्यू आ गई 2ab इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए। इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया और हमारे पास आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए का स्क्वायर, बी माइनस ए का स्क्वायर। तो b माइनस ए का स्क्वायर आ रहा है a प्लस बी का स्क्वायर एंड a माइनस बी का, इसका मतलब b माइनस ए जो हमें लेके आना था एरिया, वो a प्लस बी का स्क्वायर और ए बी स्क्वायर आ गया, और a प्लस बी और ए बी में हमें रिलेशन पता है, क्या रिलेशन आ रहा है। ओके, तो हम इसे यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, इसे भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो या तो मुझे a प्लस बी और ए बी इन दोनों की वैल्यू चाहिए जिससे b माइनस ए आ जाए। हमने क्या करा कि यहाँ पर इस पूरे को, जैसे ए प्लस बी स्क्वायर है, तो यहीं पर हमने क्या करा इसे कि ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी इसे लिख दिया ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस 4ab। ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर हमने साथ में ले लिया, a प्लस बी का स्क्वायर हमने साथ में लिया, ए बी का स्क्वायर -1 हमारे पास में आ गया, और साथ में आ गया माइनस का 4ab, माइनस का 4ab इज इक्वल टू 0। माइनस 4ab इधर आकर कितना हो गया हमारे पास, प्लस का 4ab। ओके, तो a प्लस बी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, ए बी स्क्वायर -1 प्लस 4ab आ गया। नाउ a प्लस बी स्क्वायर जो हमारे पास आया है, a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी की स्क्वायर की वैल्यू हम ए बी के टर्म्स में पुट कर सकते हैं, 3 प्लस ए बी, तो ये आ गया 3 प्लस ए बी स्क्वायर -1, साथ में आ गया 4ab, ये आ गया हमारे पास में इज इक्वल टू 0। तो ए बी में क्यूबिक इक्वेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ए बी का क्यूब हमने लिया, ए बी का क्यूब हमारे पास आ गया। अब अगर हम ए बी स्क्वायर को कलेक्ट करें तो हमारे पास में आ रहे हैं 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। अगर ए बी के टर्म को कलेक्ट करें तो यहाँ से माइनस ए बी आया और 4ab लिखा हुआ है, तो प्लस के 3ab हो गया, और कांस्टेंट टर्म को अगर कलेक्ट करें तो -3 आ गया, और उसे हमने लिख दिया -3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर इस स्टेप के बाद अगर हम देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर -3 की जगह हमारे पास +1 होता, तो अगर हम इसमें ए बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 1 -1 कर दें तो ये इक्वेशन बन गई, और यहाँ से हमारे पास आ गया ए बी प्लस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे पास आया, और ये कितना हो गया, ये हमारे पास आ गया
ए बी प्लस वन, तो ए बी प्लस वन, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 4 की पावर 1/3 माइनस वन। ये ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 की पावर 1/3 माइनस वन। ओके, तो ए बी हमारे पास आ गया और हमें चाहिए, ए बी आ गया और हमें चाहिए ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो ए बी आ गया है, ए प्लस बी भी निकालने के लिए हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर, इक्वेशन अगर 4 से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 4, जो इक्वेशन 4 है उससे ए प्लस बी का स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी का स्क्वायर था 3, 3 प्लस ए बी, तो 3 प्लस ए बी, तो 4 की पावर 1/3 माइनस वन, तो ये आ गया 2 प्लस 4 की पावर 1/3, ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी का स्क्वायर, 3 प्लस ए बी की वैल्यू आई 4 की पावर 1/3 माइनस वन, ये आ गया 2 प्लस 10। ओके, तो शायद हमारे पास में अब सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं एरिया के लिए। एरिया हमारे पास था बी माइनस ए का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ए माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, नाउ ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी के स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो आई हमारे पास में 2 प्लस 4 की पावर 1/3 माइनस 4 टाइम्स ए बी आया था 4 की पावर 1/3 माइनस वन, तो ये हो गया हमारे पास एरिया आ गया। एरिया इज 6 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 1/3। और हमें इसे लेके किस तरह से आना है, हमें इसे लेके आना है, एरिया को लेके आना है हमें, यहाँ पर ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3, इस फॉर्म में हमें एरिया को लेके आना है, राइट। तो ये इस फॉर्म में हमारे पास में एरिया को लेके आ रहा है, ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एरिया को क्या लेट करा था, यहाँ पर हमने एरिया को ए लेट कर रखा था, तो आप इसे ए क्योंकि ऊपर भी आ रहा है इसे कुछ और लेट कर देते हैं हम, एरिया को हम एस लिख देते हैं। एरिया को यहाँ पर मैंने अगर एस लिख दिया, इस एरिया को मैं यहाँ पर एस ले लेता हूँ, इस एरिया को हमने एस ले लिया। ओके, नाउ ये जो एस आया एरिया, बी माइनस ए हमें करना था कैलकुलेट, और हम इसे कैलकुलेट करके यहाँ तक आ गए। यस, ये आ गए हम यहाँ पर कि ये जो एरिया था हमारे पास एस, ये जो एस था ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ये जो एस था आपका एस, ये आ गया। ओके, ए की पावर 1/3 एंड दिस प्लस बी की पावर 1/3, तो हमने क्या करा ए, तो ये हो गया 6 को लिख दिया 216 की पावर 1/3 एंड प्लस इसे लिख दिया -27 की पावर 1/3, -27 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 1/3, ये हो गया हमारे पास में -108 की पावर 1/3। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्म में, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3 वेयर ए ग्रेटर देन बी। तो इस तरीके से हमारे पास में ए और बी आ गए। अगर ए और बी हमारे पास पता चल गए तो हमारे पास जो हमें इस प्रॉब्लम में जो हमारे पास डिफरेंट पार्ट थे, अब हम पार्ट्स को निकाल सकते हैं जो हमारे पास में यहाँ पर गिवन है। अंडर रूट ए माइनस बी, ए और बी दोनों पता है तो आप ये निकाल दोगे। स्लोप ऑफ द लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट एज ए एंड वाई इंटरसेप्ट एज बी, ये भी हमारे पास हो जाएगा, देन ए प्लस बी। तो हमारा पास प्रॉब्लम में खाली ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, इस एरिया को हमें कैलकुलेट करना था। हमने एरिया का जो फंक्शन बनाया उसे हमने बी माइनस ए, और बी माइनस ए को निकालने के लिए हमने ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab लिया, और ए प्लस बी के स्क्वायर को भी हम ए बी के टर्म्स में लिया है। और क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड क्यूबिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी थी, तो हमारे पास ए बी में जो इक्वेशन आई उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। ए बी की वैल्यू 4 की पावर 1/3 माइनस वन, और उससे हमने यहाँ पर इस एरिया को कैलकुलेट कर दिया। तो ये हमारे पास में इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर होगा जो इनसाइड दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल
लाई कर रहा है। तो आप इसे देखिए, इसे आप अपने आप करने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपको कितनी सिंपल या फिर कितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। Okay, so this is one of the questions I have chosen for the discussion. Now there is another concept, and on this concept, the concept is same, and there are 4 to 5 questions based on this concept. Okay. Now, if we come to this second problem, there are 2 points A4, comma 2 and B2, comma 4 are 2 points, and there is a line L 2x plus 3x plus 2y plus 10. Line L is so L is the given line. 3x L is 3x plus 2y plus 10 is equal to 0. There are 2 points. A point is 4, comma 2 and B is 2, comma 4. B is 2, comma 4. Now, okay. Suppose equation, if we draw this line, if we draw this line, okay, we roughly draw this line. Say this is the required line. Okay. Now there are 2 points, say A and B, point A and point B. Okay. Say there are 2 points A and B. Say this is A point and B point. हमने कोई भी यहाँ पर लेट कर लिए, कुछ इस टाइप से हमने लेट कर लिए। एक पॉइंट है A एंड एक पॉइंट है B। दिस इज रफ फिगर, ऐसा नहीं है एक्स एक्सिस है जो लाइन है मेरे पास। दिस इज लाइन L, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। नाउ अगर हम क्वेश्चंस पे जाएं तो प्रॉब्लम में हमसे किस तरह की चीजें वो निकलवाना चाह रहा है। AP प्लस PB मिनिमम, ए पॉइंट P ऑन लाइन L हमें इस तरह से ढूंढना है कि उसका सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम पॉइंट A एंड B इज मिनिमम हो जाए। एक पॉइंट Q ऑन L ढूंढना है कि डिफरेंस ऑफ इस डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 पॉइंट्स वो मिनिमम हो जाए, मॉडुलस ऑफ दैट मिनिमम हो जाए। ए पॉइंट R ऑन L सच दैट AR माइनस RB मैक्सिमम हो जाए। तो ये हमारे पास इस तरह की हमें प्रॉब्लम ढूंढनी है। तो पहले अगर हम देखते हैं AP प्लस PB मिनिमम हो जाए, AP प्लस PB मिनिमम हो जाए, तो हमें एक यहाँ पर पॉइंट ढूंढना है। से यहाँ पर कोई पॉइंट हमें P ढूंढना है कि AP प्लस PB हमारे पास कैसा हो जाए, AP प्लस PB इज मिनिमम, ये मिनिमम हो जाए। तो हम लोग ने क्या करा कि A आपके पास में पॉइंट है, A पॉइंट आपको दे रखा है शायद 4,2 एंड B इज ए पॉइंट 2,4। ये दोनों पॉइंट आपके पास में गिवन है और हमें एक पॉइंट इस तरीके से यहाँ पर निकालना है, एक पॉइंट ऐसे निकालना है कि PA प्लस PB जो है वो आपके पास में मिनिमम आ जाए। तो हमें पता है जब हमने इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन पढ़ा था, हमने ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम करी है, तो हमें पता है कि जो एक लाइट रे होती है वो एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करती है। तो अगर मेरे पास में ये जो लाइन है इसे हम एक लाइन मिरर की तरह ट्रीट करें, इसे हम एक लाइन मिरर की तरह ट्रीट करें और एक पॉइंट सोर्स सपोज ए पे रखा है, वो बी पे भी रखा हो सकता है, और एक लाइट रे यहाँ से ए से सोर्स से चलिए और वो पी सपोज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और रिफ्लेक्शन के बाद में ये वाला बी से निकल जाती है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे बी से चली जाती है। उस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट रे दैट वुड बी मिनिमम, एपी प्लस बीबी मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो जो लाइट रे है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगी, शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल करेगी। तो हमने इसी की हेल्प ली। तो अगर ये इंसिडेंट रे है, पी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, एपी और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर चला गया है, अगर इस तरीके से मुझे चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर मैं एक ही इमेज अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, अगर मैं एक ही इमेज ले लेता हूँ
ए डैश। तो हमें करना है ए पी प्लस पी बी को मिनिमम, जितना ए, ये मान लिया मैंने, ये इसका मिड पॉइंट एम हो गया और ये इसकी इमेज है यहाँ पर, जितना जितना एम ए है उतना एम ए डैश है। तो अगर ए पी प्लस पी बी को मिनिमाइज करना है, दिस इज इक्वलेंट टू मिनिमाइज ए पी। तो अगर हम यहाँ से ए डैश से भी पी को मिला देते हैं, ए डैश से भी अगर हम पी को मिला देते हैं, तो अगर इन दोनों ट्राइंगल को देखें, पी एम ए एंड पी एम ए डैश, दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जितना ए पी आएगा उतना ही ए डैश पी आएगा। तो अगर इसे मिनिमाइज करना है, दिस इज इक्वलेंट टू मिनिमाइज ए डैश पी प्लस पी बी इज मिनिमम। ठीक है, क्योंकि एपी जितना है उतना ही आपके पास में इसकी इमेज, ए डैश पी भी उतना होगा। अब बी पी और ए डैश, अब ए डैश पी एंड पी बी, इस लाइन के बी और ए डैश दोनों अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, और अगर हमें इन दोनों का सम ए डैश पी और पी बी मिनिमम चाहिए, ये तभी होगा, दिस वुड बी मिनिमम व्हेन मिनिमम व्हेन बी पी and A dash are collinear. B, P and A dash are collinear. कि एक ही लाइन में अगर ये एक लाई कर रहा हूँ, तो बस अब हमारे पास में है कि हमें एक ही इमेज निकालनी है, इस लाइन में ए डैश निकालना है, और ए डैश और बी को ज्वाइन करने में लाइन को हमें इस लाइन के साथ सॉल्व कर देना है। तो हमारे पास में किसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका निकाल देते हैं कि कितनी आपके पास में। तो ठीक है, तो बहुत सारे मेथड हमने किए थे इमेज निकालने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एल के एक परपेंडिकुलर लाइन लिख लेता हूँ। एल की परपेंडिकुलर लाइन आ गई मेरे पास में, एल की परपेंडिकुलर लाइन आ गई। एल का स्लोप जो है हमारे पास, हम ए एम की इक्वेशन लिख लेते हैं, ए डैश की इक्वेशन ऑफ ए डैश लिख लेते हैं। वैसे पैरामीट्रिक निकाल के भी मैं कर देता, लेकिन इक्वेशन ऑफ ए डैश, इक्वेशन ऑफ ए डैश के लिए मेरे पास में y माइनस टू, स्लोप कितना होगा, क्योंकि l का स्लोप है हमारे पास -3/2, तो इसका स्लोप हो जाएगा 2/3 x -4। तो क्या इक्वेशन आ गई, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, यही। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास इसकी 2x माइनस 8, तो 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y। ओके, और साथ में कितना आ गया हमारे पास में, -2 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y -2 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। l के साथ में l था 3x प्लस 2y प्लस 10, इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, और इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास में m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और m के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो 1:1 की रेशो लगा करके हम a डैश निकाल देंगे। तो हमने इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए हमारे पास में, अगर हम y को काटना चाहें तो इस वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से, और इसे कर देते हैं 3 से, और दोनों को हम, तो कितना आ गया 13x, और आपके पास ये कट गए y, और हमारे पास यहाँ आ गया -4, और यहाँ से आ गया 30। तो ये कितना हो गया 30 एंड -4 प्लस का 26 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, राइट। x आ गया -2, और x की वैल्यू -2 हमने किसी में भी रखी इसमें से, तो x की वैल्यू -2 यहाँ रखी, तो -4, और यहाँ आ गया आपके पास है -6, और y इज इक्वल टू, y इज ऑल्सो -2, y इज ऑल्सो हमारे पास में, y की वैल्यू भी आ गई -2। एक बार दोबारा देख लेते हैं, -2, और ये आ गया आपके पास -4 -6, और ये हो गया आपके पास में 6, और ये हो गया 3 की वैल्यू। ठीक है, -2 एंड 2। तो m के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास में -2, -2, -2।
ठीक है, तो ए डैश कितना आ गया हमारे पास, हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया और ए डैश निकाल दिया। तो ए डैश हमारे पास में कितना आना चाहिए, -8, -8 + 4 -4/2 और यहाँ से आ गया हमारे पास -6 + 2 -4 एंड दिस -8 -6 आ गया। ओके, ए आ गया, बी मुझे पता है, ए और बी की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। ए और बी की इक्वेशन को यदि आप दोबारा से किसके साथ सॉल्व करेंगे, लाइन एल के साथ, तो आपके पास में पी आ जाएगा। नाउ हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ बी ए डैश। इक्वेशन ऑफ बी ए डैश निकाल सकते हैं आप। तो इक्वेशन ऑफ बी ए डैश आपके पास कितनी आ गई, इक्वेशन ऑफ बी ए डैश, इसकी इक्वेशन आ गई y-4 इज इक्वल टू m टाइम्स आपका m हो गया 1, और ये कितना आ गया भाई, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, 4 - -6 10, 2 - -8 10, 10/10 1 एंड y - 4 इज इक्वल टू x - 2। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास x - y एंड x - y और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। x - y + 2 इज इक्वल टू 0, और इसे हमने किसके साथ सॉल्व कर दिया, इसे हमने सॉल्व कर दिया अपनी गिवन लाइन के साथ, तो पॉइंट P आ जाएगा। इसी गिवन पॉइंट है हमारे पास में, जो पॉइंट निकालने के लिए n लाइन है। लाइन क्या थी हमारी, लाइन थी जो गिवन लाइन, एक बार लाइन की इक्वेशन देख लेते हैं। लाइन की इक्वेशन थी यस 3x + 2y + 10, 3x + 2y 3x + 2y + 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें मिल जाएगा, सॉल्विंग गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, राइट। इसके बाद हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने में तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास में। ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करा हमने, ऊपर वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा और दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 5x इज इक्वल टू, हमारे पास 5x + 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -14/5, and by putting value of x we can find value of y also। तो एक बार देख लेते हैं हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें कहीं पर इस तरह की चीज हमें दी है, x इज इक्वल टू -14/5। यस, तो पॉइंट P on L, AP plus PB, R coordinate is -14/5 and Y coordinate is -4/5। तो we can also find Y coordinate। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास में हम इसे किसी एक लाइन में रख देते हैं। x - y + 2 लाइन में x है -14/5, x है -14/5 माइनस का y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया, y इज -4/5। तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, p इज -14/5, -4/5। ये हमारे पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में आ गए। तो इस तरीके से हमने ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया और ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट लगा करके हमने इस प्रॉब्लम का ये फर्स्ट पार्ट किया। ना अगर हम देखें इसमें जो हमारे पास जिसका फर्स्ट पार्ट है, यस, नेक्स्ट इज AQ - BQ इज मिनिमम। हमें चाहिए कि पॉइंट Q ऑन L सच दैट AQ - BQ इज मिनिमम, और एक में चाहिए हमें AR - RB कैसा हो जाए हमारे पास में मैक्सिमम। तो ठीक है, इन दोनों प्रॉब्लम्स को भी हम करते हैं। नाउ अगर हमें चाहिए AQ - BQ मिनिमम, इसके लिए हम यहाँ पर करते हैं कि अगर हमें AQ - BQ मिनिमम चाहिए, हमने ये लाइन ली थी L, सपोज ये वाली लाइन हमने ले ली से यस, यहाँ पर करते हैं कि ये लाइन यदि हमने ले ली L, एक पॉइंट A और B, ये पॉइंट मान लिया A, ये B, ये लाइन L, ये पॉइंट है 4 2, ये 2 4, अगेन रफ फिगर।
हमें चाहिए एक पॉइंट चाहिए इस लाइन पर सच दैट ए क्यू माइनस क्यू बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो डिफरेंस है वो मिनिमम हो जाए। तो मॉड की तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब है कि अगर मैं ए क्यू का जो राइट बाइसेक्टर है, अगर ए क्यू का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, वो जहां जाकर के इसे काटेगा, वो जहां पर जाकर के इसे काटेगा, वो पॉइंट मेरे पास में हो जाएगा क्यू। तो अगर ये वाला पॉइंट को मैं क्यू लूंगा तो उसके केस में हमारे पास में ये ए क्यू और बी क्यू दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, तो इनका जो राइट बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब है कि हमें मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट कितना हो गया मेरे पास में, मिड पॉइंट आ गया 3 एंड 3, मिड पॉइंट इज 3 3। तो हमारे पास में इसकी इक्वेशन आ गई y माइनस थ्री इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस थ्री, और स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी का कितना होगा, स्लोप 4 माइनस टू, 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1, तो इसका स्लोप आ गया 1। भाई ए बी का स्लोप जो है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 से आया -1, तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो गया, 1। तो ये आ गई हमारे पास में x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू वाई लाइन आ गई। इसे लाइन L के साथ सॉल्व करना है। लाइन L3 हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसमें x इज इक्वल टू वाई पुट करा तो हमारे पास आ गया, इन दोनों को अगर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 5x, y को x पुट कर दिया, 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास पॉइंट आ गया -2 एंड -2, ये पॉइंट हमारे पास में हो गया Q। तो Q तो निकालने के लिए हमारे पास आसानी से आ गया Q। अब हमारे पास थर्ड में कह रहा है कि हमें एक पॉइंट L में ऐसा चाहिए, लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट चाहिए R सच दैट ए आर माइनस बी आर, ये जो डिफरेंस अभी हमने जो मिनिमम निकाला था, अब ये डिफरेंस हमारे पास में मैक्सिमम आ जाए। ओके, इसके मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं कि इस प्रॉब्लम में अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो हम दोबारा से क्या कर रहे हैं इसमें कि इसके जो थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास अगर मैक्सिमम चाहिए, देखिए तो हमने क्या करा कि यहाँ पर हमारे पास में ये लाइन थी L, एक पॉइंट था A और एक पॉइंट था B, A B, ये सपोज 4,2, ये 2,4। ओके, तो ये जो पॉइंट है हमें चाहिए, जो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए से R कि जिसके लिए हमें चाहिए RA माइनस RB इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम आ जाए। तो अगर हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी में देखें तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो अगर मैंने इसे यहां पर लिया, सपोज मैंने आर को यहां लिया, एक ट्रायंगल बनाया, मैंने आर को यहां पर रख के ट्रायंगल बनाया, तो अगर हम यहां पर आर को लेते हैं तो ए आर माइनस आर बी हमेशा ए बी से छोटा रहेगा। ए आर माइनस आर बी, ए आर माइनस आर बी इज लेस देन और इक्वल टू ए बी। जब इक्वल टू हो गया तो कभी ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम डिफरेंस ए आर और आर बी का कितना हो सकता है, ए बी के बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब जब ये आर आपके पास में पॉइंट इस तरीके से हो जाए कि ये जो ए बी है अगर हम इसे प्रोड्यूस करें और ए बी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा हमारे पास में एल के साथ, एक्चुअली में आर पॉइंट ये वाला आर होगा जो हमें एक्सेप्ट करना है, ना कि जो पहले वाला आर था वो। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास में आ जाएगा आर। ठीक है, तो हमें सिर्फ ए बी की जो इक्वेशन है वो निकाल करके एल के साथ सॉल्व करनी है तो हमें आर मिल जाएगा। तो ए बी की इक्वेशन कितनी आ गई, y माइनस टू हमने अभी निकाला है, y माइनस टू और इसका स्लोप आया था हमारे पास में -1, तो माइनस टाइम्स x माइनस 4 ये आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन आई x प्लस वाई और यहाँ पर आ गया हमारे +4 और ये +4 इज इक्वल टू हो गया या प्लस का 6 माइनस का 6, माइनस का 6 आ गया हमारे पास, -6
माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ ए बी, equation of AB. Now solve this equation with the equation of line R. Solve this with R and get the coordinates of R, है ना। तो L के साथ में हम सॉल्व कर लेते हैं। L की इक्वेशन थी 3x plus 2y plus 10, 3x plus 2y plus 10। तो solve this by with L, 3x plus 2y plus 10 is equal to 0। 3x plus 2y plus 10 is equal to 0। इसके साथ में सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में r के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमने, ठीक है, यहाँ हमने ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली इक्वेशन में से सबट्रैक्ट द अपर वन, तो हमारे पास आ गया 3x माइनस 2x, तो x हो गया, y कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया 12 और ये हो गया हमारे पास में 22 प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। तो x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास में -22। x कोऑर्डिनेट यदि मैंने -22 रखा तो -22 एंड -6 ये हो गया -28, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 28। तो ऊपर वाले को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था, 2 से मल्टीप्लाई करा फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ गया x एंड दिस इज 12 एंड 22। तो हमारे पास में -22 28। देख लेते हैं ऑप्शन है क्या यहाँ पर। यस, Q इज द ऑप्शन। और लास्ट है पॉइंट S ऑन L सच दैट एंगल BAS इज 90 डिग्री। तो ये इस प्रॉब्लम में तो आपके पास में L दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ L है, ये पॉइंट A और B गिवन है, A एंड B आपके पास में गिवन है। आपको एक पॉइंट निकालना है S सच दैट BAS इज 90, BAS इज 90। ओके, तो हम A से एक ऐसी लाइन बना लेंगे जो A से तो पास कर रही है, A पॉइंट है हमारे पास में 4,2, y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 4, ये हमारे पास में था 2,4 और ए बी का स्लोप था -1, तो x का हो जाएगा 1। और इस लाइन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे L के साथ तो हमें S पॉइंट मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम ऑप्टिक्स की हेल्प से इसके जिसकी फर्स्ट प्रॉब्लम एंड थर्ड प्रॉब्लम जो दोनों इम्पोर्टेंट थी, अच्छी प्रॉब्लम्स थी, उन्हें हमने निकाला है। सेकंड प्रॉब्लम भी हमने देखी, ए क्यू माइनस क्यू बी कैसे मिनिमम करेंगे। फोर्थ में ऐसा कुछ नहीं था, बी ए एस एंगल को 90 डिग्री कह रहा है, ए पॉइंट पता है, बी पता है, बी ए एस, ए बी का स्लोप -1 था, ए एस का स्लोप मेरे पास में आ गया 1 और इसे नाउ सॉल्व विद, नाउ दिस सॉल्व दिस लाइन विद एल, सॉल्व विद एल एंड गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस, एस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये आपके पास में आ जाएगा। नाउ वी कैन solve or we can solve these 3 problem based on this this matrix match. Okay, that's fine. So for this video I have only 2 problems to discuss, and as I said it will take I think more or less 30 minutes, approximately 30 minutes to cover these 2. Just go through it and solve them yourself. Thank you and thanks for watching.